Assalamu alaikum and good evening, everyone. My name is Atiqa Ali, and I welcome you all to today's MAP talk. So we will begin this event, and for that, I would like to invite Mr. Talib Karim, the president of IOBM, former president MAP, who's also the host for today's event. So can we please have a round of applause? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good evening and Assalamu alaikum to everyone present here. So now I think MAP has taken a very good initiative of having these MAP talks. I think we had one last month, which was basically to do with the crisis, the Gulf crisis and the insurance industry fallout because of that crisis. It was an interesting talk. Today again, I think a lot of people are here because of a very young president of the largest bank of Pakistan, and I think they would like to hear from him. So when I asked Ali that, what type of questions, so he sent me a list and he sent Amir a list of some very dry topics. And I said that I think we need to hear some interesting things from Dr. Amir, from Mr. Amir to Dr. Amir. And so we will talk about some of the crisis. I think Dr. Amir will talk about that in his talk. But we would also like to, hear something interesting about the leadership challenges. I think Amir is one of those unique persons, if I'm not wrong, who has taken over from two founder presidents of a bank. Previously, he was with Bank Islami, and he took over from the founder president of the bank, Hassan Bilgrami, at that time. And now, of course, Mr. Irfan Siddiqui. So these are big shoes to fill. I mean, I've gone through the same experience, actually, that, I was, when I took over after my father passed away and I took over as the president, it was a huge leadership challenge. Here, you have bigger than life personality, and then you are taking over from that person. So I think a leadership role, and I think one aspect we would like to hear, at least I would like to hear from you. And it's an interesting model at Mizan that, Amir was appointed 3 years prior to his taking over as the president. I think this happens in the family businesses. I mean, usually the son will take over and people expect the son or the daughter to take over from the father. But it's very rare in a professional organization where, succession planning, was organized 3 years prior. And I think we would like to hear about that too. So before I invite Dr. Amir, let me introduce, I think most of you know him, but so he's a distinguished Islamic banking professional with over 2 decades of experience spanning across finance, treasury, corporate and investment banking. He currently serves as president and CEO of Mizan Bank, Pakistan's largest Islamic bank, where he provides strategic leadership focused on sustainable growth, corporate governance, and long-term value creation. He is a member of the Executive Committee of Pakistan Banks Association and serves on the boards of Al Mizan Investment and Mizan Exchange, contributing to the development and oversight of Pakistan's Islamic financial ecosystem. He joined Mizan Bank in 2006 in investment banking and later led the corporate investment banking group. Then he served as president and CEO of Bank Islami Pakistan from 2018 to 2023, where he successfully led a major turnaround. And during his tenure, Bank Islami's profitability increased nearly 50 times, reflecting a comprehensive transformation strategy, business operations, and financial performance.
Early in his career, he worked with A.F. Ferguson, Pakistan Refinery and Shell, gaining extensive experience across assurance, energy, and multinational environments. If I go into his academic background, then I'm from academia, and I get a bit embarrassed after reading his, what he has done. So he's a Harvard Business School alumnus, did the leadership course, and some people might not know, some of you might know this, that one of his batchmate from Harvard is now the first female chief of army in the Australian Army, and she was with Amir at Harvard. And that's where I get embarrassed. He's an MBA, he's a PhD, he's LLB, he's a CFA, he's a CA, and I don't know how many certificates in software engineering, and which reflect his technology-driven financial innovation and digital transformation. So please welcome Dr. Syed Amir Ali. So the format will be that, Dr. Amir will speak about his, and as I've said that we are interested in the banking industry, and I just read this today in Dawn that, the industry itself has grown by 18%, which is a huge growth even during this crisis. And some of the other, I don't know why, is it AI or something that somehow they found out that I'm hosting this session, so that then I got another social media posts out of the blue that Islamic banking share now is 23% now altogether, the asset share in Pakistan, which has grown considerably. And I think we host a Islamic banking conference every year, and Dr. Shith keep on reminding all the bankers that the target was 50%. And so we will, I think Amir will touch upon that also. And one other area that is always talked about is the CSR aspect of Islamic Bank, that the profit should be spread around. So Amir, about 20-25 minutes, and then we'll take questions from the audience. I won't be taking any questions. I think whatever I would like to hear from him, I think I mentioned that already. So over to you on however you want to present it. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum. Thank you so much for the lovely introduction. And thank you, Zubair Saab, for including me as part of this community. So, but एक छोटी सी story जो तालिब साहब ने थोड़ी सी बताई दी है, so when Zubair Saab asked me to come over and be part of a forum, so I thought it's more about leadership and management. So I thought, okay, I have to speak about that. Then I got a post or showing that it is related to banking and it is related to economy, economic stability. And then I got after just a day or two before this session, I also got to know that I have to also speak about the Gulf crisis. So I think, so it was an interesting one. And then Talib Saab has graciously allowed me to speak for 25 minutes. Which is, I feel, is very, very short time to cover so many things. I will try to cover things in a crisp manner. One was related to Mizan Bank's growth journey, Mizan Bank's succession planning. And I'm very happy to feel that a lot of my present and ex-colleagues are sitting in this room. So Zubair Saab was my colleague in Mizan Bank for a very long time. Rizwan Atta, who is presently Chief Executive Officer of Bank Islami, was my colleague at Mizan Bank for a very long time. And there are so many others who are in this room who are presently working for Mizan Bank. So Mizan Bank is in itself is a story of disruption. We talk too much about disruption these days, but it's not necessary that only a technology platform can do a disruption. Any new idea or concept can do a disruption. So it's a story of disruption. So a bank
which got its license in September or August 2002, is now by market caps the second largest bank of Pakistan with a market capitalization of over $3 billion. So this is a massive success from nowhere to truly somewhere. And all other parameters relating to deposits and profitability, the number of employees, the number of branches. I think, of course, this market capitalization number actually encapsulate all of this. But these are the outcomes. We, being people living in the age of data information, are too much focused on outcomes. And we believe that the outcomes will give you more outcomes. No, the outcomes are always lagging indicators. They never lead you to success. They are lagging, and they only show whether some initiative is successful or not. So actual recipe for success was neither market cap, nor deposit growth, nor profitability. So it was more about bringing on board right people, creating a right culture, and serving the clients. So if you do these three things right, then these financial numbers are the output numbers. They will automatically come out. So, and how to create that? It demands a lot of passion, a vision, and resilience, because you will go through all of these booms and bust cycles during this period of time, but you have to stay true to your original mission, where the mission is about, or vision is about, to establish Islamic banking as banking of first choice, bringing in people who have the talent, not just experience. So Mizan Bank didn't hire experience only. Most of us were either were raw talent or have very limited experience when we joined Mizan Bank. Even the CEO of Mizan Bank has never worked for a bank before that. The head of corporate banking at that point in time never worked for a bank before that. The head of investment banking never worked for a bank before that. When I joined Mizan Bank, I never worked for a bank before that. So it was a very unique bank. So it was about talent, not experience. It was about passion, not a CV. It was being aligned with the right cultural values which Mizan Bank has adopted. So Mizan Bank was actually looking for people with the similar cultural values, and then building a culture and serving the customers. So this was the recipe. So this, if you put this recipe in any bank, and I put the same recipe in Bank Islami, and it worked again. So it's a recipe for success. In any organization put in, it will work. So I think it's not by chance, it's by design, because Allah Ta'ala जो भी चीजें दुनिया के अंदर करता है वो यूनिवर्सल लॉज के तहत करते हैं. And these universal laws are not by chance, they are by choice. So coming to the next thing which we gonna cover is about the economics piece, and more importantly, I will also try to touch upon the political economy piece, which is more important, because economics, I think, is definitely a social science, but politics was invented decades, or I would say centuries, before economics. The subject of economics was invented by Adam Smith in 1776, but politics was there when Hazrat Adam alayhi salam was sent on this earth, and he started having kids. So the first two kids have a politics. So politics is about how do you make decisions, how you control power, how you distribute power, how you create welfare for the people, how you create societies. हमारी जरा पॉलिटिक्स की डेफिनेशन भी गलत हो गई है. हम समझते हैं पॉलिटिक्स का मतलब है कौन किसकी टांग कैसे घसीटेगा. This is not politics. Politics definition is slightly different. We'll try to integrate political economy into the economy. Last thing, which is the Gulf crisis, I think इंशाल्लाह ये ओवर हो जाएगा. तो इसलिए जो है इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है. बात करने की जो ज़्यादा अहम ज़रूरत है वो है कि इसमें से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है. यूक्रेन वॉर हो या नहीं हो, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी. मिडिल ईस्ट वॉर हो या नहीं हो, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस. कल यूएस जाए और ग्रीनलैंड के साथ कुछ भी करे, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस. अगर हम अपनी अपॉर्चुनिटी उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर आवर नेशन, देन वी आर सक्सेसफुल. सो वील ऑल्सो सी कि इकोनॉमिक्स किस तरह फेल होती है in front of politics. We will also try to touch upon that. But few hard facts about economics and too much dependence on monetary economics. You Fried Milton ne di thi, which came much after Lord Keynes, who gave the concept of macroeconomics and supply, aggregate demand and aggregate supply side economics.
सो ये ब्लो चल सकती है प्रेजेंटेशन को चला देंगे? नहीं, ये आप प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो कर देना. यस. So this is a concept which I feel is important to deliberate upon. So कॉलर माइक है आपके पास या नहीं? तो जरा ज्यादा बेहतर इंटरेक्टिव भी हो जाता है. सो monetary economics and fiscal economics, fiscal policy, much less talked about subject in Pakistan fiscal policy, which is a true policy, which has a long-term impact. Monetary policy by design is a short-term policy. Even Fried Milton, who was the person who gave this concept in economics, he himself said it's a 6 to 18 months thing. 18 महीने बाद इसका effect fade out हो जाता है. So monetary economics controlled by central bank, fiscal economics is controlled by federal government. Main tools, interest rate, money supply, we love to talk about that. Rest of the things we don't like to talk because we are a short-term nation. We always focus on short-term things. Government spending and taxes, that's the other piece. Speed of impact, faster. It's slower in fiscal policy. Short-term effectiveness is high. Over there, it's moderate. But long-term effectiveness. और मैं ये बिलीव करता हूँ कि इदारों की जिंदगी में और नेशंस की जिंदगी में ना 10 साल इज अ शॉर्ट टर्म थिंग. हम 6 महीने 18 महीने के चक्कर में पड़े होते हैं. मीजान बैंक की स्टोरी तो लोग जानना चाहते हैं, आउटपुट भी सुनना चाहते हैं, बट 20 साल की स्ट्रगल इज डिफरेंट. सेम अप्लाइज टू कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड इवन दुबई. एक दिन में नहीं बना, बट it is very strong, effective. Its effectiveness is very strong, but it's slower, it's long term. Main target in monetary is inflation and liquidity. Over there, it's growth and development. So the objective is very, very different. Fiscal is for growth and development. Risks leads to recession and financial distress. आप interest rate ऊपर कर देते हैं, recession आ जाता है, financial distress आप companies के लिए create कर देते हैं. फिजिकल इश्यूज के ये हो सकते हैं गवर्नमेंट के लिए कि डेट एक्यूमुलेट हो जाएगा, बिकॉज अगर आप बजट डेफिसिट्स रन करेंगे तो क्योंकि आप टैक्सेस रिड्यूस करेंगे एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेंगे, सो इट हैज इट्स ओन पिटफॉल्स. बट व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी फेड्स अवे? इंटरेस्ट रेट इफेक्ट्स. जब आप दे देंगे, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे, 22% पे ले जाना है 22% ले जाएं, 30 पे ले जाना है 30 पे ले जाएं, वंस वहाँ पहुंच जाएगा द इफेक्ट विल फेड अवे. फिर वो हर चीज़ एडजस्ट रहेगी. इंप्लॉइज आएंगे, कहेंगे हमें जी 20% इंक्रीमेंट दे दें. रेंट लेने वाले आएंगे, वो रेंट बढ़ा देंगे. इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी. 6 महीने बाद फेड हो जाएगा इफेक्ट 18 मंथ्स में. पॉलिसी ट्रांसमिशंस 6 to 18 मंथ में पॉलिसी पूरी ट्रांसमिट हो जाएगी. 18 महीने बाद वो एक नया नॉर्म सेट हो जाएगा. हाई रेट्स विल रिड्यूस इन्वेस्टमेंट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर डायरेक्शन होगी कि जी अब जाके आप पैसे सेफ हेवन्स में रख दें, रिस्क फ्री एसेट्स में रख दें, बिकॉज वहाँ बहुत लंबे लंबे इंटरेस्ट रेट्स आपको मिल रहे हैं. इन्वेस्टमेंट्स खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी. हमने मल्टीपल टाइम देखा है, बट वी लव टू यूज दिस टूल बिकॉज इट्स ईजियर टू यूज. सप्लाई साइड इन्फ्लेशन के लिए हम इसे अगेन एंड अगेन यूज करते हैं. सप्लाई साइड इन्फ्लेशन इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. सप्लाई साइड बोलते हैं हम, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. सही आसान वर्ड है ऑर्डिनरी बंदे के लिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अगर ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी, मैं कितना भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूं, ऑयल की प्राइस नीचे नहीं आएगी. अगर कोई ऐसा तरीका है तो मुझे जरूर बताइएगा कि ऑयल की प्राइस बढ़ गई हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं और ऑयल की प्राइस वापस नीचे आ जाए. तो इट्स ओनली टू क्रश द डिमांड कि जो ऑयल आप कंज्यूम ना करें, उसकी प्राइस बढ़ा दें. आप प्राइस भी बढ़ाने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, दोनों चीज़ों से आप यही करेंगे. रिसेशनरी प्रेशर आएगा एंड यू विल हैव लॉट ऑफ बूम्स एंड बस्ट साइकिल्स. बार बार बूम करेंगे, बार बार बस्ट करेंगे. लेकिन ये बूम्स एंड बस्ट जो है ना, इनके अंदर एक और चीज़ है जो पाकिस्तान इकोनॉमी में बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो अगर हम यहाँ देख सकें, आई थिंक अगर ये चलता है, जस्ट लुक एट द वन नंबर विच इज जीडीपी पर कैपिटा, प्रीटी मच कांस्टेंट. 1400, 1500, 1600, 1400, 1300, 1500, 1500, 1500. 10 साल से ये नेशन $1400-1500 पर कैपिटा पे खड़ी हुई है. $1400-1500 पर कैपिटा को आप ट्रांसलेट करें तो शायद 37,000 रुपीज़ पर मंथ आपके पास आएगा. इस कमरे में शायद हार्डली कोई बंदा होगा जो 37,000 रुपीज़ पर मंथ कमाता होगा, बट हम एज अ नेशन 37,000 रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं. द इशू क्यों बूम्स एंड बस्ट आते हैं, ये फिस्कल साइड का इशू है जिसको नहीं डिस्कस किया जाता. जीडीपी ओवरऑल हमारा नॉमिनल जीडीपी है तकरीबन $400 बिलियन के करीब करीब, बट कॉम्पोजिशन क्या है?
85% हम खुद खा लेते हैं। जो कुछ हम बनाते हैं ये ऐसे ही है, जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग बैठे हुए हों, वो ये जो कुछ कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हो, स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही खा जाएं। या अहमद साहब देख रहे हैं, तो अहमद साहब के एम्प्लॉइज ही जो जिम के अंदर एक्सरसाइज कर करके पूरा दिन निकाल दें, बाहर के लोगों को ना आने दें अंदर। ठीक है, सो दिस इज कंजम्पशन। तो जो कुछ हम बनाते हैं 85% हम खुद ही खा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए 13% चला जाता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 10% चला जाता है, एक्सपोर्ट्स हम 10% करते हैं, नेचुरली एक्सपोर्ट 10 करते हैं, और ये जो हम कंजम्पशन 84 करते हैं, तो आपको इंपोर्ट करके भी कंजम्पशन करनी पड़ती है। तो इवन खुद जो प्रोड्यूस करते हैं उसके अलावा बाहर से मंगाते हैं, उसे भी खा जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो अपना बनाया हुआ कपड़ा पहन लेते हैं टेक्सटाइल मिल के अंदर, फिर बराबर वाली मिल से भी खरीद के वो भी पहन लेते हैं। फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि कंट्री ग्रो करेगा। कंट्री ग्रो नहीं करेगा। एंड अदर प्रॉब्लम, मैं अपने जीडीपी को कितना भी बढ़ा दूं, से फॉर एग्जांपल यहां पे मेरा जीडीपी था $300 बिलियन, मेरी कंजम्पशन थी 80, अभी भी हम समझते हैं 80 है, तो मैं $300 बिलियन का 80% खा लेता था। रफली कितना बना, कोई 250 अरब डॉलर खा जाते थे हम लोग। अब मेरी जीडीपी बढ़ के आ गया 400 पे, अब अगेन उसका 80% खा जाता हूं, तो 320 बिलियन डॉलर्स खा लेता हूं। तो जितना जीडीपी बढ़ाएंगे प्रॉब्लम उतनी बड़ी हो जाएगी। हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू बिगर प्रॉब्लम फॉर अस, बिकॉज आवर कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी इज मोर कंजम्पशन ओरिएंटेड। जब तक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड जीडीपी ग्रोथ नहीं आएगी, जब तक ना क्रेडिट एक्सपेंशन होगी, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ना बैंकों के पास डिपॉजिट्स लैंड करने की कोई अपॉर्चुनिटी होगी, वो बैंक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही रखवाते रहेंगे, बिजनेसेस होंगे ही नहीं। इफ देयर आर नो बिजनेसेस, देयर इज नो लैंडिंग, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। स्टॉक एक्सचेंज वहीं खड़ी रहेगी, वही 700-800 कंपनीज होंगी, वहीं खड़े होंगे, और बैठे हुए असद और इम्तियाज ये मुझे बता देंगे कि एक्टिव यूआईएन आज भी शायद 1.5 लाख होंगे स्टॉक मार्केट में, 2 लाख होंगे एक्टिव यूआईएन, टोटल 4-5 लाख होंगे। ठीक है ना, तो पाकिस्तान के 4-5 लाख लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसके आधे एक्टिव होंगे, और ये भी पिछले 1-1.5 साल में इंक्रीज हुए हैं, वरना ये इसके 50%। पॉपुलेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, हम आगे जाके देखेंगे पॉपुलेशन को। एंड देन हमारे फिस्कल डेफिसिट कंसिस्टेंट चले जा रहे हैं, शुक्र है हम प्राइमरी डेफिसिट से मामूली सरप्लस में आ गए, थैंक्स टू आईएमएफ, अदरवाइज नहीं आना था हमने। हम आईएमएफ को बहुत बुरा बोलते हैं, बट इट्स द ओनली एंटिटी विच प्रॉब्ली इज लुकिंग आफ्टर आवर इंटरेस्ट। बाकी किसी को हमारी नेशन को कोई फिक्र नहीं है हमारा इंटरेस्ट देखने की। वो एक फॉरेन दायरा है, उसने आके थोड़ा बहुत हमने समझाया तो यहाँ बेहतरी आ गई है। करंट अकाउंट, मिडल ईस्ट में क्राइसिस आता है, ऑयल कंजम्पशन हमारी बहुत ज़्यादा है। ऑयल कंजम्पशन हमारी इसलिए ज़्यादा है बिकॉज हम कंज्यूम करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं करते, तो कंज्यूम करते हैं बहुत सारा ऑयल, तो हमारी करंट अकाउंट भी आउट हो जाता है। तो कंजम्पशन जितना बड़ा होगा आपका, उतनी जल्दी आप करंट अकाउंट भी आउट करेंगे। तो ये दोनों बीमारियां, उनकी जड़ एक जगह जुड़ी हुई है, विच इज कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी। नोबडी डिस्कसेस दैट अनफॉर्चुनेटली। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बात बहुत करने लगी हैं एक्सपोर्ट के लिए। सो पहली दफ़ा इट्स म्यूजिक टू माई ईयर, मुझे तो नहीं याद अपने बचपन से बड़े होने तक कि किसी ने आके इस मुल्क में एक्सपोर्ट की बात की हो। तो थैंक्स टू हिम, कितना इम्पैक्ट वो क्रिएट करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात एटलीस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हम सब बात करते हैं, बट लेट्स लुक एट दिस फ्रॉम नंबर्स परस्पेक्टिव। सॉरी, ये स्क्रीन थोड़ी छोटी है, स्लाइड छोटी नहीं है, बट स्क्रीन छोटी है, तो आप लोगों को दूर से प्रॉब्लम होगी देखने में, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये 2025-2026 का बजट डॉक्यूमेंट है, एक्चुअल एक्सट्रैक्ट है उसका। इफ यू लुक एट द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज रेवेन्यू और कलेक्शन, 14.1 ट्रिलियन का बजट का टारगेट सेट हुआ है। हम 14 ट्रिलियन का रेवेन्यू बोल देते हैं इसके अंदर। दिस इज वन थिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बिफोर वी, टैक्स रेवेन्यू है 14.13 ट्रिलियन का। इसमें से हमारे पास जो एफबीआर जो रेवेन्यू हमारा कलेक्ट कर रही होती है, वो अगली स्लाइड पे देखते हैं। बट व्हाट हैपेंस विद दैट टोटल रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू हमारे पास 11 ट्रिलियन रह जाता है, बिकॉज वी ट्रांसफर टू प्रोविंसेस। 8.2 ट्रिलियन वो प्रोविंसेस को चला गया। अब इंटरेस्टिंगली जो 11 ट्रिलियन रह गया, पॉइंट को छोड़ देते हैं, उसमें से 8.2 ट्रिलियन कहाँ जाता है? इंटरेस्ट पेमेंट्स में। तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, 11 में से 8 चला गया, तो बचा 3। अब 3 में से सबसे ज्यादा हम क्रिटिसाइज करते हैं डिफेंस को। हमारी हैबिट होती है कि 50% बजट तो डिफेंस में चला जाता है। नहीं सर, 14 ट्रिलियन में से सिर्फ 2.5 ट्रिलियन डिफेंस में जाता है। और अब आई थिंक पूरी दुनिया को अच्छे से समझ में आ गया है
कि अगर आपके पास मिलिट्री माइट नहीं होंगे आप, तो आपके साथ वो सलूक और जो कतर के साथ होता है, जो कुवैत के साथ हुआ था, जो अभी दुबई के साथ हो रहा है, जो फ़लस्तीन के साथ हुआ था। फ़लस्तीन की इन्होंने इतनी, ईरान की भी इतनी मार लगनी थी जितनी फ़लस्तीन की लगी थी, अगर ये रिटेलिएट ना करते फ्रॉम अ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट। कोई नहीं आता सर बोलने के लिए, वहां भी कोई नहीं आया था। सो वहां चला जाता है। रेस्ट आपके पास क्या रह जाता है? हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं सिविल गवर्नमेंट रन करने की कॉस्ट को। फेडरल गवर्नमेंट 971 बिलियन रुपीस रन करने पे खर्च करती है। सब्सिडीज की भी मैं बात नहीं कर रहा, जिसके अंदर सब्सिडीज में हमें भी कुछ मिलती हैं और कुछ जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जो लॉस कर रही हैं उनको भी जाती हैं, उनको छोड़ देते हैं। मैं मानता हूं उनको बंद कर देना चाहिए, उनको या ठीक कर देना चाहिए, उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, लेकिन अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा। सिविल गवर्नमेंट के पास जाता है 1 ट्रिलियन 14 ट्रिलियन, तो गवर्नमेंट रन करती है। स्टैंडर्ड देख लेते हैं, इंडिया 6 से 8% स्पेंड करता है सिविल गवर्नमेंट को रन करने में, बांग्लादेश 4 से 6% करता है, यूएस 6 से 8 करता है, हम भी 5% रन स्पेंड करते हैं। तो हमारी स्पेंडिंग कोई एबनॉर्मल नहीं है। ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि गवर्नमेंट कोई एबनॉर्मल स्पेंडिंग करती है। एक्चुअली गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है उसके बदले में एफिशिएंसी जनरेट नहीं करती। सो इट्स एन इनएफिशिएंट गवर्नमेंट। अगर इस 5% को मैं 8% पे ले जाऊं और गवर्नमेंट को एफिशिएंट कर दूं तो इट्स अ बेटर ऑफ। वो आप हम एम्प्लॉइज हायर करते हैं, क्या करते हैं? हायर अ गुड एम्प्लॉई, हायर अ गुड सीएफओ, गुड मार्केटिंग हेड, गुड एचआर हेड, उसको अच्छे पैसे दो, वो अपनी सैलरी का टैक्स 10x कमा के देता है आप। और उसके बदले में एक बंदा हायर कर लो 50,000 रुपए का, सॉरी टू यूज दिस, माठा बंदा, तो फिर काम बिल्कुल भी नहीं करता बल्कि काम खराब कर देता है। तो हमारी गवर्नमेंट में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम स्पेंड ज्यादा करते हैं, हमारी पूरी कौम को हमने लगाया हुआ है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, इसको कम कर दो ठीक हो जाएगी। गवर्नमेंट को एफिशिएंट बढ़ा दो, मेरे हिसाब से 971 बिलियन को ना डबल कर दो, गवर्नमेंट ठीक कर दो, ये कंट्री ठीक हो जाएगा। बिकॉज पॉलिटिकल इकोनॉमी is the actually important subject than economy. So just moving on faster, कितना टाइम है सर? So this is another interesting thing, inefficiency समझनी है अगर आपने एक्सपेंस के ऊपर नहीं देखें, एफिशिएंसी के ऊपर देखें। एक्सपेंस तो हमने देख लिया कि एक्सपेंस तो हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड से कम है। ग्लोबल स्टैंडर्ड 8% 9% है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेवेन्यू का, हमारा तो 5% है। हम तो एफिशिएंट लोग हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। बट एफिशिएंसी का इशू कहाँ आता है? ये आ गए सर, हम 14.1 ट्रिलियन को इसलिए छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कि इसका अभी ईयर क्लोज नहीं हुआ तो एक्चुअल नंबर नहीं है हमारे पास पब्लिश, बट लास्ट ईयर के एक्चुअल नंबर्स हमारे पास जो पब्लिश हुए में 11.9 ट्रिलियन का एफबीआर रेवेन्यू मिला हमें। डायरेक्ट टैक्सेस को हम छोड़ते हैं, वो चले गए 5.6 ट्रिलियन रुपीज हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में गए, विच इज 51%। 51% के लिए कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना था, कोई एक्सपेंसेस असेसमेंट कुछ नहीं होनी थी। जो सेल हुई उसके ऊपर जितना मेरा कंट्रीब्यूशन था इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, मेरी कंजम्पशन ज़्यादा हो सकती है, मैंने भी 18% सेल्स टैक्स दिया। यहाँ बेचारा जो बंदा होटल के अंदर वेटर होगा उसने भी 18% सेल्स टैक्स दिया होगा, सबने बराबर दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमने 51% रेवेन्यू कलेक्ट किया। उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्सेस थे उसके अंदर से अगर हम देखें तो 3.3 ट्रिलियन जो था वो विदहोल्डिंग था। 58% ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर कमिंग फ्रॉम विदहोल्डिंग। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और विदहोल्डिंग टैक्सेस, विदहोल्डिंग कौन कर रहा होता है? मीजान बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया, विदहोल्डिंग कर ली। फॉर एग्जांपल कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बैठी हुई है, उसने अपने वेंडर को पेमेंट की, विदहोल्डिंग कर ली, तो ये विदहोल्डिंग टैक्स है। ये एफबीआर कलेक्ट नहीं करता, ये हम लोग कलेक्ट करते हैं और एफबीआर को जमा करते हैं। ठीक है, तो एफबीआर की कोई एफर्ट नहीं होती इसके अंदर। विदहोल्डिंग और इसको ऐड करने से सर इट मेक्स 9.5 ट्रिलियन। 80% ऑफ द एफबीआर टैक्सेस आर कलेक्टेड ईदर थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस और विदहोल्डिंग टैक्सेस। सर बाकी बचे 20%। अब 20% में भी एक स्टोरी है, एंड इट इज अ पब्लिश नंबर पर रेवेन्यू डिवीजन ईयर बुक 2024-25। दीज आर नॉट माय नंबर्स, दीज आर एफबीआर नंबर्स। एडवांस टैक्स जो कंपनीज देती हैं वॉलंटरली रिटर्न फाइल करने से पहले, दैट इज अ नंबर ऑफ 1.9 ट्रिलियन। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर से विदहोल्डिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस को ऐड कर देते हैं, 95% ऑफ द एफबीआर रेवेन्यू कंप्राइज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, विदहोल्डिंग टैक्सेस एंड एडवांस टैक्सेस। 5% ये सर एफबीआर कलेक्ट करता है। पेमेंट विद रिटर्न्स 2222 अरब और 267 बिलियन ये कलेक्शन ऑन डिमांड करता है, एफर्ट करता है, उससे जाके कलेक्शन करता है। तो 95% टैक्स तो वैसे ही। तो इनएफिशिएंसी is an issue, it's not the cost which is an issue.
सेम वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हम बैंक्स के बारे में भी बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट के भी बात करते हैं अवेलेबिलिटी पे, उसके ऊपर अगर हम देखते हैं हमारा प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट टू जीडीपी 11.5 है, इंडिया 40 पे है, बांग्लादेश 35 पे है, मलाइशिया 116 पे है। खैर कंज्यूमर फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा है मलाइशिया में, बट देयर इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। जरा ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन, ये कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी तो देखें सर, हमारा है 12% इन्वेस्टमेंट में जाता है, 10 से 12, ये पिछले साल का नंबर है, पिछले से पिछले साल का। वो 32 करते हैं, बांग्लादेश 30 करता है। जीडीपी की कॉम्पोजिशन ही अलग है। आप सारा जीडीपी खा जाते हैं। जीडीपी इज रेवेन्यू, जो कंपनी की टॉप लाइन है ना सेल्स, मुल्क में उसको जीडीपी बोलते हैं। हमें लगता है कि ये प्रोडक्शन है, नो इट्स अ रेवेन्यू नंबर, ठीक है, इन नॉमिनल टर्म्स में। उसका हम 30% इंडिया इन्वेस्ट कर देता है, 60% खाता है। बांग्लादेश 30 इन्वेस्ट करता है, 69 खा लेता है। हम 85 खा लेते हैं, 12 इन्वेस्ट करते हैं। जब आप 12 इन्वेस्ट करेंगे सर, तो क्रेडिट की जरूरत भी थोड़ी सी होगी। इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही नहीं रहे, आप तो सारा कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट होगी तो यू नीड क्रेडिट। जब आपकी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट टू जीडीपी भी इसी नंबर पे नजर आएगा। तो इस नंबर को चेंज जब तक हम नहीं करेंगे ना, इस कॉम्पोजिशन को, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, जब तक हम ठीक नहीं होंगे। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी इज अ डेंजरस इकोनॉमी, बिकॉज जैसे ही उसको ग्रो करेंगे वो फिर ओवरहीट हो जाएगी, बस्ट कर जाएगी। दिस इज अनदर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। सारे कंट्रीज नहीं है बट इंटरेस्टिंग कंट्रीज हैं। पाकिस्तान को छोड़ें, इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, चाइना, यूरोप को ऑन एवरेज, नॉर्थ अमेरिका, दीज आर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है? अफ्रीका का। नंबर 2 पे कौन है? पाकिस्तान। आउटसाइड अफ्रीका, पाकिस्तान इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। अफ्रीका को निकाल दें, पूरी दुनिया ले लें, पूरा एशिया भी ले लें उसमें, वी आर द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। 2% के करीब हम ग्रो करते हैं। 2.5 भी बोल देता है कोई, 2.25 बोल देता है। अभी हमने जो एक सिंगल सोर्स से जहां से ये सारे नंबर लिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से, हमने वही नंबर उठा लिए, रात दिन के हम अपने नंबर इधर से उठाते, उसके उधर से उठाते। हमने कहा लेट्स यूज द सेम सोर्स, ऑल्दो टू मी दिस नंबर इज स्लाइटली हायर, इट्स 2.25 जो हमारा अपना पब्लिश नंबर है, राइट। तो हम, लेकिन उसको नहीं मैंने डाला जानबूझ के, बिकॉज फिर ये नंबर भी मुझे अफ्रीका का हासिल करना पड़ता कहीं और से। जब इस रेट पे आप ग्रो करेंगे ना, तो सर आप अपनी सारी गैस खा लेंगे, सारा गंदुम भी खा लेंगे, सारा पानी भी पी लेंगे, बिकॉज योर माउथ्स आर ग्रोइंग, योर ब्रेन्स अनफॉर्चुनेटली आर नॉट ग्रोइंग। यू आर ग्रोइंग योर माउथ्स, नॉट ब्रेन्स। ये हम ब्रेन ड्रेन बोलते रहते हैं, सर ये बहुत थोड़े से लोग हैं ब्रेन ड्रेन वाले। ब्रेन ड्रेन डेफिनेटली हमारा इशू है, बट ये जो इतने माउथ्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, विच आर इनएफिशिएंट, विच आर ओनली माउथ्स नॉट हैंड्स। ब्रेन तो बहुत सुपीरियर चीज है ना, ब्रेन्स तो इस रूम में बैठे हैं, बट हैंड्स तो प्रोड्यूस करते हैं, जो काम करें थोड़ा सा। हम तो ब्रेन्स भी नहीं प्रोड्यूस करते, हम तो हैंड्स भी प्रोड्यूस नहीं करते। तो इस प्रॉब्लम का फिक्स इज नॉट एन ईजी फिक्स। इसलिए मैंने फिस्कल इकोनॉमी, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की शुरू में बात की थी। अगर आप कहेंगे यार ये सेंट्रल बैंक कर दे ठीक, तो भाई सेंट्रल बैंक के पास तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। बैंक्स कर दें, वो भी उसी टूल के थ्रू गवर्न होते हैं, या तो वो लैंड कर सकते हैं या डिपॉजिट ले सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए बिगर एफर्ट और बिगर फोकस चाहिए। थिंक टैंक थोड़ी बात करेंगे ना तो लोग फोकस करेंगे, वरना हम इन्हीं चीजों के दरमियान में घूमते रहेंगे। एक इनिशिएटिव जो CSR का बोला था तालिब साहब ने, उसको मैं इससे कनेक्ट करना चाहूंगा कि CSR में बहुत सारी चीजें लोग डिफरेंट कर रहे हैं। ऑल थिंग्स आर गुड, व्हाट मीजान बैंक इज ट्राइंग टू डू एंड इट इज डूइंग, इट इज टिप अप, आई वुड से वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस। कोई हमने बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं किया, but we are creating an impact inshallah, and we'll inshallah continue to create an impact. But let me see, if we have a population of 250 million, जो 2024 का हमारा नंबर था, where unemployment is 5 to 7%, illiteracy or literacy is only 37 to 38% people are illiterate. Illiterate की definition ये, जो 15 साल का हो जाए, 1 साल के बच्चे को illiterate पे नहीं गिनते हम, 15 साल का हो जाए और लिखना पढ़ना नहीं आता हो बिल्कुल, वो इलिटरेट है। तो ये उसके ऊपर वाले लोग हैं, 15 साल से बड़े वाले, जिस पे कैलकुलेट हुआ है। पॉवर्टी 45 to 50%, बिकॉज अभी 50 पे चली गई है जो लास्ट आया है, वरना ये
इस लेवल के ऊपर हम पॉवर्टी पे ऑपरेट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन सी पॉवर्टी लाइन लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का 2-3 मेजर्स हैं पॉवर्टी लाइन के। यूथ, दिस इज ओनली सिल्वर लाइनिंग हमारे पास, हमेशा नहीं रहेगी। जापान भी यूथ होता था, आज नहीं है। हमें लग रहा है कि हम हमेशा यंग रहेंगे, हम हमेशा यंग नहीं रहेंगे। वैसे अगर 2.25 की पॉपुलेशन रेट पे ग्रो करेंगे तो शायद रहेंगे फिर कोई मसला नहीं है, फिर लगे रहने दें सबको, तो उसको बढ़ाए। सो अब इनका करना क्या है? ये इतने सारे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जॉब भी नहीं है, गरीब भी बहुत हैं, साथ में मुंह भी लगा हुआ है। एक तो होता है ना मुंह नहीं लगा होता, खाते पीते कुछ नहीं, तो हम कहते ठीक है यार रहने दो, कोई बात नहीं, खाते पीते तो कुछ है नहीं, अनाज भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, गैस भी इस्तेमाल नहीं करते, पेट्रोल भी नहीं इस्तेमाल करते, कोई मसला नहीं है। यूथ 64 है, दैट्स अ सिल्वर लाइनिंग। मूविंग अहेड, वे फॉरवर्ड, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एज मीज़ान बैंक, एंड वी आर डूइंग इट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी है। So we are partnering with vocational training institution across the country. Even we are in the process of taking over one large vocational training institute spanning over 4 acres. अगर हम वो इंशाल्लाह ले लेते हैं इस टैफ्टा से, तो हम उसको एक मॉडर्न vocational training institute बनाएंगे। सेलेक्ट स्टूडेंट्स, नेचुरली स्टूडेंट सेलेक्ट करना क्यों हमारे लिए कि जब 15 साल की उम्र में एक बंदे को लिखना पढ़ना नहीं आता होगा, या उसने 4 जमातें पढ़ी होंगी अगर पढ़ना भी आता होगा, क्योंकि ग्रेजुएट्स तो बहुत थोड़े से हैं, और एक बंदे ने अगर 4 जमातें पढ़ी, 15 साल का हो गया है, मैं उसको बीबीए नहीं करा सकता। बीबीए का वर्ड मैंने जानबूझ के बोला है बिकॉज मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग हर चीज़ में। आपको आप बेचारे हम बैंक में भी रखते हैं, तो बीबीए बेचारा जो है ना, वो मुझे तो थोड़े दिन में लग रहा है खालिद साहब टी बॉय और राइडर भी बीबीए रखेंगे। तो मैं अपने ट्रेजरार जो हैं उनको कहता हूँ मजाक में, उनके पास सबसे ज़्यादा बीबीए हैं, तो मैं कहता हूँ यार वो देख लो, कोई हमारा टी बॉय और राइडर भी बीबीए तो नहीं है। जिस हिसाब से बीबीए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्किल्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बट अब उसको बीबीए भी नहीं करा सकते, क्योंकि अब तो 15 साल का हो गया, अब जमातें पढ़ी हैं 2 4, बीबीए तो नहीं करेगा। बीबीए करने के लिए तो उसे पढ़ना पड़ेगा कितने साल और, टोटल 16 ईयर एजुकेशन है ना, तो 4 पढ़ी हैं उसने, तो 12 साल और पढ़ाना पड़ेगा। अभी 12 साल का तो सर टाइम नहीं है पढ़ाने का इस नेशन के पास। तो इन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करें जो लेस एजुकेटेड हैं, 4 8 10 जमातें पढ़ी हुई हैं, इनको करें सर हम सॉफ्ट लोन दें। अभी हम सॉफ्ट लोन भी दे रहे हैं और हम इनको डोनेशंस भी दे रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट डोनेशन से किया है, ज़्यादातर सॉफ्ट लोन्स हम डिग्री जो लोग परसू कर रहे हैं उनको दे रहे हैं। सॉफ्ट लोन मींस कंप्लीट इंटरेस्ट फ्री लोन। बट इसमें भी हमारा फ्यूचर मॉडल यही है कि आज जो हम डोनेशन दे रहे हैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू सॉफ्ट लोन्स। वन, वी आर एबल टू अट्रैक्ट द पीपल, बिकॉज अभी तो लोगों को आदत ही नहीं पड़ी है कि वो कोई स्किल एक्वायर करके काम करने की ख्वाहिश रखें, और उसी वजह से वो दुबई भी बेचारे चले जाते हैं। मैं आगे दिखाऊंगा उनके साथ होता क्या है उसके बाद। सो initiate training in large cities of course, and then take those people there, and this will produce skilled youth. This will not produce brains, this will produce trained hands. ठीक है, और ये trained hands क्या करेंगे, ये employable skills होंगी, 6 से 12 महीने में ये लोग एक्वायर कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में हम इन्हें प्लेस कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस, किस तरह से मैं आपको कह रहा हूं कि इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। $1 बिलियन, $5 बिलियन का नंबर कहां से लाया मैं? 1 मिलियन पीपल अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, 1 मिलियन लोग अगर आप बाहर ले जाते हैं, 10 लाख सिर्फ, आज हमारे 10 मिलियन लोग बाहर हैं। सो $500 पर पर्सन इस वक्त रेमिटेंस एवरेज है, जो स्टेट बैंक भी रिपोर्ट करता है, हमारा बैंक का एक्सपीरियंस भी यही है। उसको आप मल्टीप्लाई करें तो साल के $5 बिलियन आते हैं एडिशनल 1 मिलियन लोगों को बाहर भेजने से, स्किल करके। पॉवर्टी रिडक्शन होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका रिड्यूस होगा। एंड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई वी नीड ट्रेन्ड पीपल। पाकिस्तान में आप एक बंदे को मिनिमम वेज देते हैं विच इज अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड की क्या है 48,000 या 47,000 है या 46,000 है, पता नहीं, 46,000 है। अनस्किल्ड जिसको जर्नली हम लोग देख रहे होते हैं रफली 41,000 है। इसको जरा डॉलर्स में ट्रांसलेट करें तो ये 90 सेंट्स आते हैं। मैंने 8 घंटे का वीक लिया है, 5 दिन काम कराया, 4 हफ्ते रखे। सो इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल आवर्स इन अ डे, 24 घंटे पे नहीं है, 8 घंटे के दिन पे 90 सेंट्स, लेस देन $1 1 घंटे में कमाता है। यही बंदा स्किल होके यूएस चला जाता है, तो यूएस के लेटेस्ट नंबर क्या है सर, मिनिमम आवरली वेज क्या है, $18 है। कितनी है यूएस में? $18-20, $17, $18, ठीक है। यूएस चला जाएगा। मिडल ईस्ट में देखते हैं
मिडल ईस्ट में ये रेंज है $6, $7, $8, स्केल लो अगर प्रॉपर वीजा पे गया हो स्केल लो $6 से $8 का, मतलब यहाँ कितने कमाता है 90 सेंट। उसी बंदे का आप पोटेंशियल देखिए उन हैंड्स का, कहां से कहां पहुंचा देगा आप। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी अल्हम्दुलिल्लाह हम यही चीज कर रहे हैं, इसको नंबर पे प्रूव हो रहा है, दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। सो आई कॉल इट अ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, अदर वन इज अ मैकेनिकल प्रोडक्शन। ठीक है, थोड़े से जरा इमोशंस को बाहर निकाल दें। बायोलॉजिकल प्रोडक्शन है, जैसे आप वीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप किन्नू प्रोड्यूस करते हैं, वैसे आप सॉरी टू से बंदे भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इनसे थोड़ा काम कराएं, इनको सिखाएं। सो वर्ल्ड बैंक का नेचुरली वो जो हमने पॉवर्टी लाइन का $3 पर डे पर पर्सन का हमने नंबर यूज किया था, इससे नीचे वाला भी नंबर है, $1.8 वाला भी है, उस पे जाएंगे तो थोड़ी पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी लाइन में जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है वो थोड़े कम हो जाएंगे। हमने ये नंबर यूज किया तो वो थोड़े से ज्यादा हो गए। सो दिस इज द होल गेम सर, दिस इज द मैसिव इम्पैक्ट। अगर ये क्रिएट कर लेते हैं, एंड वी आर डूइंग इट, वी हैव रन मल्टीपल पायलट्स, वी हैव बीन एबल टू ट्रेन पीपल, वी हैव बीन एबल टू प्लेस पीपल आउटसाइड पाकिस्तान एट गुड सैलरीज, एंड आवर एक्सपीरियंस इज 60,000 रुपीज का खर्चा आता है एक बंदे को ट्रेन करने में, 60,000 रुपए में वो स्केल हो जाता है। इट्स नॉट 5 lakh rupees per semester for a BBA degree. It's 60,000 rupees, transforms his life, transforms his family life, his mohalla life, because अब उसके मोहल्ले में भी लोग इंस्पायर होके आते हैं वापस से, and this country's fortune, $5 billion बेच सकता है। So I call it brain drain versus hand drain. लोग मुझे कहते हैं यार आप ये क्यों कर रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई मैं ब्रेन ड्रेन नहीं कर रहा हूँ, मैं हैंड ड्रेन कर रहा हूँ। हैंड ड्रेन और ब्रेन ड्रेन में एक बहुत बड़ा फर्क है। मेरे सारे कजन्स ब्रेन हैं, सारे बाहर हैं, सब मुझे फोन करके सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, आमिर भाई पैसे बाहर कैसे ले जाने, अब्बू का घर बेचकर। कोई $1 भी पाकिस्तान नहीं भेजता। और वही लड़के हैं हमारे इर्द गिर्द जो बाहर चले गए थे, जो सेमी स्किल्ड थे, टेक्नीशियन हैं, वो एक एक पैसा, और मैं उन कैंप्स में जाके देख के आया हूँ, एक बेड पे 3 लोग सोते हैं। अब आप कहेंगे यार 3 कैसे सोते हैं, बिकॉज 3 शिफ्टें होती हैं, तो उस शिफ्ट के अंदर उसका बेड होता है वो सिर्फ 2 तो मैंने खुद देखेंगे जी, ये सुबह मेरा है और ये रात को इसका है। तो मुझे उसने कहा 3 तो मुझे समझ में नहीं आया, 2 तो मैंने देख लिए कि सुबह कोई और बंदा था, रात को कोई और बंदा था, एक बिस्तर पे, जो इतना ही होता है जितना बड़ा मेरी बॉडी है। बाकी सारे पैसे पाकिस्तान भेज देता है। और ये जो ब्रेन है ये $1 भी नहीं भेजते बाहर, सिर्फ ज़कात के पैसे भेजते हैं, सॉरी टू से, जिससे हम इंप्रेस हो रहे होते हैं कि उन्होंने पैसे भेजे। वो ज़कात के होते हैं, उन्हें बंदा नहीं मिलता तो वो पाकिस्तान भेज देते हैं। इन बच्चों के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पे फोकस ना करें, 100% करें, बट इनका साइज बहुत बड़ा है। और उसके लिए भी हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं विच इज सॉफ्ट लोन्स। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, जज़ाकल्लाह खैर। Thank you, Dr. Amir. I think very informative presentation. I think we'll open the floor for questions. We have, I think, 20 minutes. तो एक माइक अगर कोई पास कर सके, तो पहले अगर आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें, then you can ask the question. Sure. And just a request question, not a statement. अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछें जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज़म ट्राइफेड की आपने बड़ा अच्छा बोल दिया, वरना हम लोग कमेंट देने के बड़े चैंपियन हैं। सर स्लाइड नंबर 1 पे एक क्वेश्चन है, व्हाइल यू पुलिंग इट अप, आमिर भाई अमेजिंग प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट इट। आपने समंदर को कूजे में समेट दिया। फर्स्ट स्लाइड में नहीं, सॉरी नेक्स्ट वन, माय अपॉलॉजीज। अब ये ऑफ कोर्स आपने जीडीपी लिखा है 412 बिलियन, वी नो दैट्स नॉट अ रियल जीडीपी, दैट्स रिपोर्टेड जीडीपी। नाउ अगर ये जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, कोई कहता है 1 ट्रिलियन है, कोई टोटल मिला के 1.4 है, वो मे बी हैव अ बेटर गेज ऑफ इट, तो भी परसेंटेजेस यही होंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन यही होगा। ठीक, यही सवाल था मेरा। तो इसका मतलब हमारी कंजम्पशन भी उसी तरह प्रोपोर्शनली बढ़ जाती है। इसलिए आपको कहीं इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही ना, वरना अनडॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट भी हो रही होती। वो तो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमिक्स में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, ठीक है, प्रोडक्टिव एसेट्स की इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बैंक डिपॉजिट्स और ये चीजें जब तक वो इन्वेस्टमेंट में ठीक है, सेविंग इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बट नॉट, उनमें हमें कुछ फैक्टर्स लगाने पड़ते हैं जब हम प्योर इकोनॉमिक्स में जाते हैं। Very good presentation, Dr. Amir. Thank you very much. मेरा नाम तौकीर महाजिर है. I represent Khaleej Times in Pakistan.
पूछना ये था कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू थिंक विल ट्रेन इन द फर्स्ट ईयर एंड इन द नेक्स्ट 3 years फ्रॉम दोज वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स? सर अभी तो हमने ये एफर्ट स्टार्ट की है, और पहले रिजवान साहब बैठे हुए बैंक इस्लामी में भी हम ये एफर्ट करते थे और वो चल रही है. सो बाय द टाइम आई लेफ्ट बैंक इस्लामी, हमने उसी वक्त स्टार्ट की थी, 2022 में स्टार्ट की. तो वी वर एबल टू ट्रेन एंड सिक्योर जॉब्स फॉर 200 किड्स. ठीक है. वैसे पीनट लगेगा, मगर उससे पहले वो जीरो ही था बैंक इस्लामी के लिए. राइट नाउ रफली 500 kids are being sponsored by Mizan Bank at this point in time, and we are trying to scale up. और अगर हम ये इंस्टीट्यूशन जो मैं और खालिद साहब विजिट भी करके आए थे, जो हमने काफ़ी एफर्ट से कोशिश की है कि सिंध गवर्नमेंट हमें अलाउ करे चलाने के लिए, सो अगर वो हम कर लेते हैं तो इट विल बी थाउजेंड्स, मे बी 5,000 बच्चे हर साल हम प्रोड्यूस करेंगे वहाँ से. So 5,000 per year approximate. एंड दिस वी विल नॉट स्टॉप इट, वी विल गो अहेड ऑन दिस. रुकेंगे नहीं हम इस पे. 5,000 हमारी टारगेट नंबर हमारा बहुत बड़ा है. Initial जो आप कह रहे हैं. जी. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Rizwan Atta, Bank Islami. By virtue of knowing your capabilities, your educational background, and mashallah with the strength of Bank Mizan Bank, which is the largest Islamic bank in the world, do you have any plan that Mizan Bank, by virtue of your leadership, doing something different in the world, which any of the Islamic bank in the world haven't done it? Because I'm sure you can do that, and I'm sure you must be having some plans. देखिए रिजवान साहब, आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात की. देखिए एक तो मुझे लगता है कि ये जो प्लान है ना, अगर हम इसको स्केल अप कर लेते हैं एंड वी स्केल इट अप टू ऑल मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, दिस विल टर्न द फॉर्च्यून्स. और नर्सिंग प्रोग्राम भी हमने करना शुरू कर दिया है, नॉट फुल नर्सेज बट नर्सिंग टेक्नीशियंस, एंड दिस इज द ओनली प्रोफेशन इन द वर्ल्ड जिसको फॉरेन जॉब मिल जाती है. डॉक्टर को बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है, नर्स को फॉरेन मिल जाती है, चाहे वो टेक्नीशियंस हों. और वो आपने अगर देखा तो यूरोप का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माइनस में, इट मीन्स दे हैव एन एजिंग पॉपुलेशन. तो एजिंग पॉपुलेशन को होम केयर चाहिए, तो इस पे केयर गिवर्स होते हैं, इसमें टेक्नीशियंस होते हैं, इसमें फिजियो टेक्नीशियंस होते हैं, और ये एक साल में बच्चे ट्रेन होते हैं और निकलते हैं. इंटरेस्टिंगली हुनर फाउंडेशन के साथ हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं. हुनर ने ये सेटअप किया हुआ है कोरंगी में, सो आई पर्सनली विजिटेड सेटअप, और हमने उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया. तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है. Thank you for the motivation. Assalamu alaikum ji. This is Intisar. We are also working a little bit on it. So we have around 5,000 students which we are trying to develop and train with the AF school. हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हमें जो आ रहा है, which we see in the industry, and that's what I like to hear your views. 5वीं क्लास से ऊपर उसके घर वाले उसको पढ़ने नहीं देते लड़के को. जहाँ उसको इंग्लिश आती है और मैथ्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन लिखना आता है, दे मूव्ड हिम टू द शॉप. वो उसको कहीं किसी जगह ले जाते हैं. हम वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए लड़कियां हमारे पास स्टे करती हैं, दे गो अप टू मैट्रिक एंड एवरीथिंग. बट लड़के द मोमेंट ही स्टार्ट्स, क्योंकि वी अंडर प्रिविलेज एरियाज में ही सिर्फ ऑपरेट करते हैं 17 स्कूल्स, वहाँ हमें सबसे बड़ा थ्रेट ये आ रहा है कि कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को 5वीं क्लास से ऊपर जाने नहीं दे रहा, और वो उसको फौरन किसी दुकान पे लगा देता है, किसी जगह भी, कि बस इसको इतना आ जाए कि लिख ले, कैलकुलेशन कर ले, तो इंग्लिश के वर्ड व्हाट्सएप कर दे, एंड दे मूव्ड इट. दिस इज द रियल चैलेंज इन डेवलपिंग द यूथ राइट नाउ वी आर फेसिंग. सर आप कह सही रहे. देखिए 5 मिलियन लोग हैं अनएम्प्लॉयड, 5 मिलियन. हमने तो 5,500 ही निकालने हैं, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी. ये 5 मिलियन ना, सबने काम भी नहीं करना. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये, हु आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट. मेरी अगर वाइफ है, भले वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, इफ शी इज नॉट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं काउंट होती. तो ये वो लोग हैं 5 मिलियन के करीब, 4 जो जॉब ढूंढ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान. तो उनमें से ही हमने बंदे निकालने हैं. और हमने तो ये भी किया था इसके अंदर, लेट मी बी ऑनेस्ट, कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे ना, उनको हम लेके आए. इलेक्ट्रीशियन है, देसी तरीके से काम कर रहा है, उसको ट्रेन किया, वो ऐसा स्किल हो गया कि उसको चेक रिपब्लिक में जॉब मिल गई. 12 लोग गए थे चेक रिपब्लिक, तो उनको वहां जॉब मिल गई, बिकॉज दे वर स्किल्ड नाउ प्रॉपरली. उन्हें टेक्निक्स पता थी कि तार को मिलाना कैसे है, कनेक्टर कैसे लगाना है, वो तारों को यूं नहीं लपेट देना और टेप लगाना है. तो वो चीजें भी सीख जाते हैं. तो दोनों तरह के लोग घूम रहे हैं.
क्योंकि हमारा टारगेट जो हमारा पॉपुलेशन साइज है ना वो बहुत बड़ा है, उसमें से हमने सैंपल बहुत छोटा लेना है, बट ये प्रॉब्लम जरूर है जो आपने आइडेंटिफाई किया है ना, ये हमने भी एक्सपीरियंस किया, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सॉफ्ट लोन नहीं दे रहे हैं हमने, क्योंकि वो लोन लेके तो बिल्कुल ही पढ़ने को तैयार नहीं है। सो वो कहते हैं यार डोनेशन दे के पढ़ा दो, उसमें भी बीच में से भाग जाता है, उसकी रिटेंशन भी बड़ा मुश्किल होती है, ये रहेगा या भाग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप सर? माय नेम इज़ जावेद दीदी, आई एम रिप्रेजेंटिंग निफ्ट हियर। बिसाइड्स निफ्ट एक और प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं काम करता हूँ फॉर द लास्ट 30 इयर्स, विच इज़ स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन खालिद जिना हॉल, 1951 का एस्टेब्लिश। आई एम प्रोडिजी ऑफ दैट। मैं वहाँ से बोलना सीखा हूँ, चलना सीखा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाना शुरू किया था फ्रॉम माई इंजीनियरिंग टाइम। मैं इस पे बाद में आऊँगा, इससे पहले मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि आपने पॉपुलेशन पे तो कहा, तो पॉपुलेशन में जो एक मेजर इशू है, अगर कोई उस पर आप थोड़ी सी अपनी विजडम दें अबाउट द यील्ड, जो हमारी एग्रीकल्चर, जितना हम हैंड्स है ना जो हमारे माउथ, तो माउथ के लिए यील्ड भी हमारी कम होती जा रही है। इट्स अ डबल एज सॉर्ड। उसके लिए कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं दिख रही है। सेकेंडली, आपने कहीं हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई जिक्र नहीं किया। व्हाट इज़ द पेन पॉइंट? क्योंकि लग ऐसे रहा है कि जो इस व्हील को मूव करने के लिए ज़रूरी है, वो एक तो है आपका एजुकेशन, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, गुड मैनेजमेंट, गवर्नेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिकल बेस पे जो आपने बताई, फूड सिक्योरिटी, आपने मिलिट्री और ये सब चीज़ों पे बात कर ली थोड़ी बहुत। जो इंडस्ट्री है उसके बारे में अगर आपका कोई विजन हो तो वो बताइएगा। लेकिन मैं अपने बैकग्राउंड थोड़ा सा, आई वांट टू टेक इट फ्रॉम इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, कि सिंस 1991 वी आर गिविंग द बुक्स, बैग्स, स्कूल फी and uniform and copies, printed copies from our organization, and we used to give it to around 3,000, 4,000, 5,000 students. And I agree with इंतजार भाई कि इस तरह की प्रॉब्लम है कि लोग ये तो ले लेते हैं, फिर इसके बाद आगे पढ़ने में एक लाइन पे ख़त्म हो जाता है। सो व्हाट वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड, आप वाली बात के 5,000 लोग, मैंने 500 लोग हमने टारगेट किए हैं। नाउ वी आर कमिंग अप विद अ नेक्स्ट लेवल प्लान विच आई विल डेफिनेटली शेयर विद मोस्ट ऑफ द पीपल, इन विच हमारे यहाँ जो इस वक्त फ्रीलांस है, जो फ्रीलांस कम्युनिटी है, वो एकदम से वाइप आउट होने शुरू हो जाएगी अब बिकॉज ऑफ द एआई। अब आप देखना शुरू करेंगे कि जो कंटेंट लिखते थे, मोनोग्राम बना रहे थे, बट दे हैव अ गुड स्किल ऑफ वर्किंग, उनको अपग्रेड करने के लिए हमने कुछ प्लान बनाया है, एंड डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू पीपल एंड अदर पीपल इन दिस फोरम और समवेयर एल्स। और इंशाल्लाह वी विल आल्सो कम अप विद 500 स्टूडेंट्स का हमारा टारगेट है इन नेक्स्ट 5 ईयर, कि हम इतना वो लेके आ जाएं कि कम से कम हर साल 100, 150, 200 लोग इस तरह के निकालें कि दे कैन गिव अ हैंड एंड गिव द इनकम टू द पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेंगे, ये गारंटी है भी, टिल द टाइम दे कम टू द डिग्री लेवल, एंड दे आर नॉट अ डिग्री लेवल पीपल, दे आर बिटवीन कस्प, वो वहाँ पे ठहर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे वही वाला है कि इंडस्ट्री के बारे में अगर कोई आप हमें विजडम दें कि हो क्या रहा है और यील्ड पे क्या कर सकते हैं या क्या होना चाहिए। एक तो जावेद भाई आपकी शॉपिंग लिस्ट ना बहुत लंबी है, इसके लिए कुछ 6 घंटे की प्रेजेंटेशन चाहिए थी। मुझे तालिब साहब ने 25 मिनट दिए थे, तो मैंने मटेरियल आइटम्स को पिक किया। जी जी, वरना आप हेल्थ पे पूरा दिन बात करें, कोई इशू ही नहीं है। एजुकेशन पे आपने 5 दिन की कॉन्फ्रेंस करनी है, आप 5 दिन की कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, चलती रहेगी उस पर डिस्कशन। तो इसलिए मैंने जानबूझ के इन डिटेल्स में नहीं गया था। जब मैंने कहा इन्वेस्टमेंट, सो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट इज इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स, राइट। एक चीज जो यहाँ मैं कवर करूंगा, और इंटरेस्टिंगली जो आपने कहा ना कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मैं उसको इंडस्ट्री नहीं कहूंगा, मैं उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहूंगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ फिनोमेना। इंडस्ट्री लगाना एक बंदा कोई लड़ मार के पैसे खिला खलू के मजबूरी में बड़ी मुश्किल से परमिट निकाल के लगा लेता है, जो बेचारे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे कर रहे होते हैं, उनके अपने चैलेंजेस और टैक्स वाले उनके साथ ट्रीट कर रहे होते हैं। इंटेंट ये थी उसको शो करने की और टैक्सेस को शो करने की कि इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहे और टैक्सेस आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपकी तो अपनी ऑलरेडी पॉलिसी ये है कि यार इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, कंट्री पॉलिसी इज कि इन्वेस्टमेंट ना हो। भले वो मुंह से बोलते रहे, बट पॉलिसी यही बनाई गई है। मतलब मैं बोलूं कुछ भी लेकिन करूं कुछ और, तो वो होगा नहीं। सो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी है कि आप टैक्सेस को रैशनलाइज करें, FBR को फैसिलिटेशन मोड में लाएं, बिकॉज वो वैसे भी और कुछ नहीं कर रहा, 5% ही टैक्स जमा कर रहा है पाकिस्तान का। उन चीज़ों को अगर आप ठीक करें तो इंडस्ट्री खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। यही कंट्री था सर, 50s में जाते हैं एशिया, विच वॉज द एशियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन, जापान, विच वॉज द सेकेंड, पाकिस्तान, कंसिस्टेंटली, बिकॉज देयर वॉज एन इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी।
तो जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इशू है। अब उसके अंदर डीप हम और जाते जाएं कि किस इंडस्ट्री में क्या करना है, एग्री यील्ड में क्या करना है। एग्री यील्ड यस हमारी काम है, बट एग्रीकल्चर कल्टीवेशन एरिया वी हैव डबल्ड फ्रॉम व्हाट वी वर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सर, 2 पाकिस्तान के सबसे बड़े इंसिडेंट्स हैं। एक है 1947 जब हम बने, और दूसरा है 1971 जब हम टूटे। हमें अच्छा नहीं लगता बात करना। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन उधर गई थी। हम लोग थे 68 मिलियन पॉपुलेशन, वो लोग थे 75 मिलियन पॉपुलेशन। इसीलिए वो इलेक्शन भी जीत गए थे। ओवरऑल नंबर सीट्स भी ज्यादा थी उस पार्ट की पाकिस्तान के। आज वो कितने हैं आपको पता है? फ्रॉम 75 165, और हम कितने 68 से 225 और 240। तो सर फिर वो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन भी हमने सर बढ़ाई है, यील्ड भी हमने उस वक्त से बढ़ाई है 1971 से, बट पॉपुलेशन उससे ज्यादा फास्ट पेस पे बढ़ाई। ये बात सही है कि एग्री के अंदर बेशुमार अब पोटेंशियल है ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजीज, ड्यू टू प्रिसिशन फार्मिंग। बट ये भी पिछले 5-6 सालों में 8 सालों में हमारे पास आया। पहले टेक्नोलॉजी आई थी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की, उसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया था। अब प्रिसिशन फार्मिंग की आई है, हमने अभी तक दोनों को अडॉप्ट नहीं किया है। ये हमारी लैकिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी फोकस ही नहीं किया एग्री सेक्टर के ऊपर। एग्री सेक्टर तो बेचारा खुद ही चल रहा है। थैंक यू। मेरा नाम अरशद मसूद है। आपने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, और हकीकत में देखा जाए तो आपने हमें उन चीज़ों को बता दिया जो हमने फेस करनी है। बहरहाल आपने फिगर्स फैक्ट्स बताया। मैं आऊँगा आपके CSR के जो आपका है। मेरा खुद ताल्लुक, मैं मौलाना जौहर के साथ जौहर फाउंडेशन वेलफेयरेशन बनाई हुई है, और हमारा मकसद भी पाकिस्तान में ये है कि एक यूनिवर्सिटी कायम करना, और ये एक विजन है। और मैं समझता हूँ कि आप इस हवाले से अगर हम आगे कुछ अगर एनालिसिस करें तो हम किस हद तक इसमें आपसे सवाल हासिल कर सकते हैं। चाय के ऊपर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जुबैर साहब को सर ये थे, इनसे आपने इंडस्ट्री का सवाल पूछना। ये आपको इतनी तकलीफों की लिस्ट बताएंगे कि उसके बाद आप कहेंगे सलाम करेंगे नहीं, सर आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप हमसे हार वार पहने, पैसे लें और चलाएं इसको। शुक्रिया। ये इतना मुश्किल काम है जो ये कर रहे हैं। आपने मुश्किलात का कहा, तो मुश्किलात इतनी गुजरी कि अब हम आदी हो गए हैं उसके। अब कोई ऐसा नहीं, हाँ जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे मेरा बच्चा है, वो उस माहौल में काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है ये मुश्किलात आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, अब रहा जो आपने ट्रेनिंग की बात की ना, मैं आपको एक ज़ाती तजर्बे से बताना चाहता हूँ कि उसमें अगर आप तवज्जो दें, नर्सिंग सर ऐसा है, देखिए एक हॉस्पिटल है जहाँ हमारे दोस्त बशीर जान मोहम्मद साहब चलाते हैं, खारादर जनरल हॉस्पिटल। आप गए ना, वहाँ पे नर्सिंग की ग्रेजुएशन वो करवाते हैं, आपने देखा होगा। फंड भी करना शुरू कर दिया। वेरी गुड, बिल्कुल उनको करना चाहिए। अच्छा, वो जो वहाँ से नर्सेज ग्रेजुएट होकर निकलती हैं, यूके में जाएंगी, मिनिमम उसकी मिनिमम वेज है 2000 पाउंड्स। 2000 पाउंड्स इन पाकिस्तान इज 8 लाख रुपीस। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इसके ऊपर थोड़ा और एम्फेसाइज कीजिए। हाँ, दे विल ब्रिंग, उससे उनकी पूरी फैमिली के स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अगर वो 8 लाख कमाती हैं, 4 लाख भी पाकिस्तान भेजेंगी, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, सबको लिए जॉब अवेलेबल है वहाँ पे। दूसरा डे केयर सेंटर्स हैं, यही नर्सेज जो है डे केयर सेंटर में लगती हैं, उनको इससे भी ज़्यादा सैलरी मिलती है डे केयर सेंटर्स में। तो मैं चाहूँगा आपका बैंक इसको देखे। सर बहुत शुक्रिया। आपने देखिए, मैं ये सिर्फ कहूँगा जुबैर साहब माशाल्लाह जितने जादीदा आदमी हैं, और मैं जब ये बात कर रहा था उस वक्त जुबैर साहब मसरूफ थे, कहीं देर से पहुंचे, लेकिन उन्होंने वही बात की नर्सेज वाली जो मैंने आपसे, आप बैठे हुए थे, मैंने नर्सेज की बात की थी सर। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बात रेस की है। दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन की वजह से सबसे बड़ी डिमांड इसकी है। जिस वक्त कुवैत पाकिस्तान में किसी को वीजा नहीं देता था ना, किसको देता था? नर्सेज को। थैंक यू सो मच फॉर खालिद साहब, ये जरा Assalamu alaikum. My name is Naeem Siddiqui. I'm representing Construction Association of Pakistan. 3 छोटी से गुजारिशात। एक तो कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत उम्दा और एक नए एस्पेक्ट के ऊपर आपने दी। अगर आपकी चूंकि नंबर्स और आपने मेहनत करके एक जगह की है, इफ़ यू अलाउ
तो हमें अगर मिल जाए तो हम लोगों को इसको यूज़ करने में आसानी होगी. थैंक यू वेरी मच. नंबर 2, ये जो आपने स्किल्स की बात की, आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट दिस कि हम मसल्स बेच रहे हैं अपने बाहर, बट ये एक बहुत अच्छा आपने एस्पेक्ट दिया. व्हेन आई वाज चेयरमैन फॉर द कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त नेफ्टेक के साथ और जीआईसी के साथ हम लोगों ने इस पे बहुत काम किया. और जो हम लोगों को प्रॉब्लम आई कि वो जो हमारा अर्नर है जिसको हम लेके आ रहे, जो वैसे ही अपने बाप के साथ या चचा के साथ काम सीखता है तो उसको कुछ ना कुछ वेज मिलती है. हम जब उसको अपने वोकेशनल इंस्टीट्यूट में लेके आए तो उसकी वो वेजेस खत्म हो गई, तो वो आने को तैयार नहीं हुआ कि हम ये सीख के क्या करेंगे. हमारे तो जितने दिन 6 महीने या 8 महीने लगेंगे, हमारे एक घर की अर्निंग खत्म हो जाती है. तो दिस वाज द चैलेंज. तो अगर तो आप जैसे इंस्टीट्यूशन और कोई आ जाते हैं और उनको वो स्टाइपेंड मिल जाता है और उनको फ्री के अंदर तालीम मिल जाती है, तो एक बहुत बड़ा नंबर और बहुत बड़ी कामयाबी होगी. इसके अंदर मेरा जो एक और भी कहना था कि हम लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो एफिशिएंसी और उनकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म कर दी है. और उसके अंदर अगेन प्रॉब्लम आई है बैंक्स की वजह से कि उनकी फाइनेंसिंग नहीं होती, उनकी गारंटीज नहीं होती. वरना मैं पाकिस्तान से बाहर 16 साल से सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ इसी कंपनी के साथ, अपनी कंपनी के साथ. तो हम लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले पाते बिकॉज वी लैक द गारंटीज इशू. तो उसके अंदर अगर हम लोग की कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बाहर भेजेंगे तो जो रेवेन्यू का परसेंटेज है दैट वुड बी ट्रूमेंडस. तो सर हम एज एसोसिएशन हम आपको ऑफर करते हैं. हम लोगों ने पूरा अपना गारंटी का एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, विच इज़ गारंटी स्ट्रक्चरिंग डिपार्टमेंट अंडर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो इससे पहले कभी नहीं था हमारे बैंक में और भी पाकिस्तान के हार्डली किसी बैंक में. बट वी आर फोकस एंड वी आर इशूइंग स्ट्रक्चर्ड गारंटीज. जो पहले तो ये होता ना प्रॉपर्टी रखो और दो, और हमने शुरू कर दिया तो आप में तो चाहे मिलेगा, विल लुक इनटू इट, इट विल बी अ बिजनेस केस, हम देखेंगे और कर देंगे. एक्सेलेंट. इसमें हम आपके साथ हेल्प कर सकते हैं सर. ये जो नेफ्टेक वाला है वोकेशनल ट्रेनिंग वाला. और जो तीसरी चीज मैं आपसे एक गुजारिश थी कि जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी आपने बताई, तो क्या ये हिस्टोरिकली है या ये दरमियान में हुई है? मेरी एक इसके अंदर ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग क्योंकि नंबर्स नहीं है, कि एक खास पीरियड के अंदर हमारे यहाँ एक वजीर आजम आए, वो बैंकर थे और उन्होंने आसान क्रेडिट का और क्रेडिट कार्ड का, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद से उसकी कंजम्पशन बहुत बढ़ गई कि हमें पता नहीं लगता कि हम एक्सपेंस क्या कर रहे हैं. तो क्या उसकी वजह से आई है? वो जब हम हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो पता लग जाएगा. बट मेरे नज़दीक वो बहुत हुआ उस जमाने में कि गाड़ियां भी किस्तों पे और हर चीज़, फ्रिज भी, तो टीवी भी और क्रेडिट कार्ड भी. थैंक यू. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम मोहम्मद मुसद्दिक अजीज़ है. मैं पाकिस्तान में स्कूल एजुकेशन पर काम करने वाली एक बड़ी एनजीओ ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट में होता हूँ. सर आपने सीएसआर की बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं, डोनर हैं. स्कूल एजुकेशन नेबरिंग कंट्रीज को हम देखें तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है इसमें, और इस पर जब तक बहुत ज़्यादा कलेक्टिवली काम नहीं होगा पाकिस्तान के चैलेंजेस नहीं होंगे कम. तो अगर ब्रीफली ये बताना मुनासिब समझें कि मिज़ान बैंक जो सीएसआर का काम कर रहा है उसमें स्कूल एजुकेशन पे अगर ब्रीफली आप रोशनी डालें कि क्या सपोर्ट कर रहा है, किन इदारों को सपोर्ट कर रहा है. देखिए सर, क्विक आंसर दूंगा मैं. हर इंस्टीट्यूशन जो होता है, मैं इसमें बड़ा बिलीवर हूँ कि थिन आउट नहीं करना हमने अपनी एफर्ट. मैं इंडस हॉस्पिटल जाके कभी नहीं पूछता कि आप स्कूल एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, और टीसीएफ से ये नहीं पूछता कि आप हेल्थ पे क्या कर रहे हैं. तो हर एक ने स्पेशलाइज करना है और करना चाहिए. ये एक वक्त में एक बंदा डॉक्टर और इंजीनियर, मेडिकल डॉक्टर और इंजीनियर नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये दो अलग अलग स्ट्रीम्स बनती हैं. सो हमारा इस वक्त फोकस है वोकेशनल ट्रेनिंग. हम ऑफ एंड ऑन, ऐसा नहीं है कि हमने कहा है कि बाकी किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे. ऑफ एंड ऑन डू सम अदर थिंग्स, बट आवर फोकस, जस्ट लाइक इंडस फोकस ऑन हेल्थ, we focus on vocational training. Just like TCF focus on school education, we focus on vocational training. Ji, thank you so much. Amir, excellent presentation, and naturally this was expected from you. MashaAllah. Sorry about the confusion. 2-3-4 different topics जो है आपको दे दिए गए, and I think वो शायद इस excitement में कि डॉक्टर आमिर हैं, and he is a CFA, he's an MBA, he's an LLB, he's a PhD, so I'm sure he could cover a CA as well. Of course, that is the first and foremost. अमर भाई नाराज हो गए. Right, so I thank you for that, and thank you for accepting our request. एक चीज़ सिर्फ मैं, जो ज़ुबैर तुफैल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, and he is very active माशाल्लाह से on the Federation platform. Prior to coming to this talk, we had a meeting with the Consul General of Turkey,
एंड वो जो नर्सिंग वाली जो बात अभी हो रही थी उसमें ही स्पेसिफिकली मेंशन दैट अगर पाकिस्तान से जो, क्योंकि जिक्र निकला था कि HR जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट अगर किया जाए, तो ही इज़ हाईलाइटेड वन पर्टिकुलर एरिया विच इज़ नर्सिंग वेयर ही सेड देयर इज लॉट ऑफ डिमांड. सो दैट्स अनदर कंट्री जहाँ पे जो है वो नर्सिंग की डिमांड है. तो आई थिंक अगर इसमें जैसे लाइक विद द सपोर्ट ऑफ मीज़ान बैंक फर्दर डेवलपमेंट होती है तो देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल अवेलेबल. दिस इज समथिंग आई वांटेड टू हाईलाइट. थैंक यू. नहीं सर, थैंक यू. एक में और कमेंट, जो सवाल भी आया था, तालिब साहब ने भी शुरू में कहा था, तो मैं उसको सिर्फ कवर कर लेता हूँ अपने कमेंट के अंदर. जो इकोनॉमी की बात हुई, क्राइसिस की बात हुई, पॉलिटिक्स, लीडरशिप की, तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बेसिक सी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ. जब एडम स्मिथ आया ना, तो उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए 3: लैंड, लेबर और कैपिटल. अब इंटरेस्टिंगली लैंड, ऐसे मुल्क हैं जिनके पास बहुत सारी लैंड है. मंगोलिया आप चले जाएं, लैंड ही लैंड है, कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ नहीं. पाकिस्तान लेबर ही लेबर है, बंदे बहुत हैं, कुछ भी नहीं. कैपिटल, अफ्रीका के अंदर चले जाएं, नाइजीरिया में, रवांडा में, गोल्ड माइंस, कोल माइंस, सही है, सब कुछ है. फाइट हो रही है, कुछ भी नहीं. तो ये कोई भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स में, इसने कभी नेशंस की ना फॉर्च्यून्स नहीं बदली. मैंने वो आपको नेशंस बताई जिनके पास लैंड है, किसी के पास लेबर है, किसी के पास कैपिटल है. ठीक है. अब आ जाते हैं हम उन नेशंस के पास जिनके पास तीनों नहीं है. दुबई, अभी हम क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, हमें मजा तो बड़ा आ रहा है, लेकिन उन्होंने बनाया क्या? 8 लाख लोग रहते हैं वहाँ. अपने तो 8 लाख लोग हैं ना भाई. मिलिट्री नहीं है, चलिए एक उनकी वीकनेस है ना, 8 लाख लोगों में कितनी बड़ी मिलिट्री बनाते. कैपिटल अपना तो कुछ भी नहीं है, ना ऑयल निकलता है, ना गोल्ड निकलता है, ना स्टील निकलता है, ना सिल्वर निकलता है. अबू धाबी में निकलता है, दुबई में तो कुछ नहीं निकलता. तो ना लेबर है, ना कैपिटल है, ना लैंड है. रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, उस पर भी जाके वो घास लगा देते हैं. फर्क क्या है? सिंगापुर, ना लेबर है, लेबर चले हैं उनके पास, लेबर नहीं कहना चाहिए मुझे, दे हैव स्किल्ड लेबर. कैपिटल कोई नहीं था उनके पास शुरू में, वो तो बड़ी मुश्किलों से मलेशिया से आज़ाद हुए थे. तो मलेशिया का अपना व्यू था कि तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे. पानी देने का तो कोई एग्रीमेंट लिया था उन्होंने आज़ादी पे, पानी भी नहीं था, कैपिटल भी नहीं था, लैंड भी नहीं है, सिर्फ लेबर है. ये तरक्की कैसे कर गए? और हमारे जैसे मुल्क, हम मरतबा बोलते रहते हैं हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे पास इतनी ज़मीन है ज़रखेज़, हमारे पास कैपिटल भी है, सोना है, हमारे पास कॉपर भी है, निकाल नहीं पा रहे हैं. इशू क्या है? ना लैंड इशू है सर, ना लेबर इशू है, ना कैपिटल इशू है. It's the leadership and management issue and governance issue. So I call it governance and management, not just governance. जिन मुल्कों की गवर्नेंस और मैनेजमेंट ठीक है वो इन तीनों के बगैर सक्सेसफुल है, और जिनकी खराब है वो इन तीनों के साथ अनसक्सेसफुल हैं. और ऐसी एक एग्जांपल नहीं है, आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको 8-10 एग्जांपल्स जो मैंने खुद पढ़ी हैं डीप में इन इकोनॉमीज को, मैं आपको बता दूंगा उनके बारे में कि कैसे गवर्नेंस और मैनेजमेंट एक सक्सेसफुल कंट्री लाइक इटली एंड ग्रीस जो रूल करते थे दुनिया के ऊपर, उनको बैंकरप्सी पे ले गई. और कैसे चाइना जैसा मुल्क जो वीट पीते थे और सिर्फ जो है थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर कर लेते थे, आज उसको दुनिया की सुपर पावर बनाती है. Thank you. I think we are out of time and quick questions or two about the tea. I was just like one of the shows television में कि there's I think few $1 billion of expenditure on motor fuel जो use होता है for motorbikes. Why banks are not getting together to give electric bikes on a soft loan to people so that at least we can save money on oil imports? सर बिल्कुल, आपने अच्छा तो मीज़ान बैंक का मैं बता सकता हूं मैं, और 1-2 बैंक्स और हैं जिनका मुझे पता है. सो वी गिव एन इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर बाइक्स. वी चार्ज नो इंटरेस्ट एट ऑल. 12 months इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर ई बाइक्स एंड पेट्रोल बाइक्स. बोथ पेट्रोल बाइक्स हमारी, वी आर द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर और सिंगल रीसेलर, बिकॉज हम प्रोड्यूस नहीं करते, ऑफ होंडा बाइक्स. मीज़ान बैंक, ये नहीं पता होगा, ये टोयोटा आपको होंडा खुद बता देगा कि सबसे ज्यादा बाइक्स कौन बेचता है, वो कहेंगे मीज़ान बैंक बेचता है हमारी, एक सिंगल आउटलेट से. मैं ये नहीं कह रहा कि 50% उनकी बेच देते.
बट ईवीज की अनफॉर्चुनेटली ना अभी तक लोगों को अवेयरनेस भी नहीं हुई थी, सस्पेशन भी बहुत था। ये ईवी अडॉप्शन जो है ना, ये गल्फ वॉर करेगी इंशाल्लाह, और कर दी है उसने। ये आप समझें उसके अंदर ब्लेसिंग है। मैं तो ईवीज पे बहुत अरसे से सोल्ड हूँ, लेकिन लोग सोल्ड नहीं थे, लोग ईवी कार्स भी लेने को तैयार नहीं थे। अभी हमने अपनी इन हाउस बैंक में भी 6, 7, 8 हमारी पूल व्हीकल्स थी। वी हैव बुक्ड ऑल न्यू ईवीज फॉर दैट। तो हमने कहा इन सबको रिप्लेस कर दो, जस्ट मूव आउट पेट्रोल कार्स एंड ब्रिंग इन ईवी कार्स सो दैट वी डू अडॉप्शन। ये ईवी बाइक्स नहीं बिकती, पेट्रोल बाइक्स बिकती है, बट आई होप कि बिकना शुरू हो जाएंगी। अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, और ये पिछले ना सर चंद सालों में ही हुआ है। और जैसे कोविड हुआ था ना, तो कोविड ने एकदम डिजिटलाइजेशन को एक्सपेडाइट कर दिया था। तो आई थिंक इस गल्फ और दुनिया में ना ईवी अडॉप्शन को एक्सपेडाइट कर देगी, खासतौर पे पाकिस्तान में। जब 400 रुपए का पेट्रोल खरीदना पड़ा ना लोगों को, तो समझ में आई, वरना सब कह रहे थे ठीक है चलने दो अभी। Thank you, Dr. Amir. I think a very insightful and informative session, and thank you very much for sparing time. Ji, over to you, Ali. जी थैंक यू तालिब साहब, थैंक यू आमिर साहब। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। 2-3 टेक अवेज जो मैं लेके जा रहा हूँ। एक तो आपने जिक्र किया कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए फ्रॉम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली इकोनॉमी से टू एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, जिसकी आपने एक हिंट किया आपने, और उसके लिए हमें कॉम्पिटेंसीज या कंपैटिटिवनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक नहीं है। We at MAP are trying to play our role in that, to develop those strategic competencies through various means. और उसमें हम चाहेंगे कि आपके साथ और बाकी सब इदारों, by the way, Mizan Bank is a member of Management Association of Pakistan. दूसरा जो आपने जिक्र किया वोकेशनल ट्रेनिंग का, आई थिंक द लास्ट टाइम वी हैड वोकेशनल ट्रेनिंग इन पाकिस्तान वाज इन द अर्ली 70s, भुट्टो ईरा, जब मिडल ईस्ट बूम कर रहा था। ये और बात है कि उसके पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव असरात भी आए, मतलब हमारी जो गल्फाइजेशन हुई है ना इकोनॉमी की, वो भी एक उसका असर था। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये उसके बाद छोड़ दिया हम लोगों ने। इस वक्त हमारे पास जो बच्चे निकल रहे हैं उनके पास कोई हुनर नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आप कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर डूइंग, कि स्किल आप डेवलप करें लोगों की, क्योंकि स्किल लेबर की बहुत ज़रूरत है। तो ये 2-3 चीज़ें मेरी जो मैंने सीखी। आई एम श्योर एवरीवन इज गोइंग अवे विद सम लर्निंग। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा इस वक्त हमारी जो एग्जीक्यूटिव के जो सब मेंबर्स मौजूद हैं, जुनैदी साहब, इंतसार साहब और खालिद जमान साहब, अगर वो तशरीफ़ लाएँ, और मैं ज़हमत दूंगा तालिब साहब को जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट हैं, टू प्रेजेंट मेमेंटो ऑन दिस ओकेजन। जी आइए। बहुत ही अच्छी होप है फॉर द नेक्स्ट 10, 20, 25 ईयर्स। तो हमें सबको इनकी तरफ देखना चाहिए, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये मुल्क की मईशत को भी अच्छा करेंगे और बैंकिंग इंडस्ट्री को भी अच्छा करेंगे। मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।